Hello everyone, welcome back to my channel, BioLearning. This is Weber, and today we'll be discussing about a topic, blood. That is the liquid of life, or it is the most important component of life. So, when we say about the blood is a part of cardiovascular system. It is a part of cardiovascular system, and as we have discussed, the function of the cardiovascular system is to transport the substances across the body from one part to the other part. So, as I have told, that blood act as a medium or act as a liquid in which all the material that needs to be transported get dissolved and are carried from source to the target. Okay, so today in this lecture we will be discussing about all the aspects of the blood, what are the components of blood, and what are its function. So let's begin. So when we want to define blood, the single line definition of the blood is a liquid connective tissue consisting of plasma and formed elements. About the plasma and formed elements, these will be discussed later on. Now, about the first main thing that is shown in the yellow, it is a liquid connective tissue. Okay, it's a liquid connective tissue. You can see the liquid connective tissue. Now the question arises, why it is known as connective tissue? लिक्विड तो इसका स्टेट है, इसलिए इसको अपन लिक्विड कह रहे हैं क्योंकि ये एकदम वाटर जैसे दिखता है अपन को. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. सो the reason there are two main reasons to it. The first reason is it has the same embryological origin. Now what do you mean by embryological origin? मतलब ये कौन सी germ layer से बना है? There are three main germ layer: ectoderm, mesoderm, endoderm. The blood and other connective tissue are derived from mesoderm. That's and also the blood has the same general components. For example, fiber. It consists of protein mainly, matrix consisting of plasma, and cell that are the formed elements of the blood. So that's the one reason. Now second reasons come here is that it connects different organ system. For example, how it connects. So how it connects होता ये है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लंग्स में ऑक्सीजन आई, मतलब मैंने ऑक्सीजन का एक्सचेंज करा, मेरे ब्लड में डिजोल्व हुई, मेरे ब्लड में डिजोल्व होकर वो गई टिश्यू साइड पर जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली टिश्यू साइड से मेरा जो CO2 निकल रहा है बाहर, वो CO2 आया, वो लंग्स तक आया ब्लड के थ्रू एंड वो बाहर चला गया. सिमिलर सेम विद द materials absorbed by the GI tract or the digestive system of your body. The carbohydrates, the amino acid, they all gets absorbed by the intestine, dissolved in blood, and get carried to the target site or the target tissue or the cells. Similar with the hormones, as you know, hormones are secreted by the endocrine glands, which are ductless gland. That's why these hormones are get released into the blood and they reach to their target organ by means of blood. And same with the other signaling molecules, for example, enzymes. Now, what about the blood and homeostasis? Okay, so firstly we will discuss about what is homeostasis. Homeostasis का मतलब होता है होमियो is a Greek word. Homeo means same, stasis means static, stable और steady. ओके, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की जो कंडीशन है ना, वो एक ऑप्टिमल कंडीशन पे रहनी चाहिए. इट शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट बी गेट अल्टर्ड होते ही आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी. तो कैसे ब्लड हेल्प करता है, ब्लड कैसे होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है? ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स पे लेके जाएगा और वहाँ से लेकर आएगा. एंड इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. जो भी अनयूजफुल थिंग है उनको बॉडी से बाहर निकालेगा. द सेकेंड मेन रीजन इज द ब्लड maintains the pH of the body, the temperature of the body, and it provides protection against the foreign substances. How it maintains temperature? For example, tissue side पे क्या हो रहा है? एक्टिव ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एक्टिवली फूड यूज हो रहा है और एनर्जी मिल रही है अपन को, तो वहाँ पे क्या हीट जनरेट होती है. तो ब्लड क्या करता है? ब्लड उस जगह से जो हीट होती है ना, वो लेकर आता है और वो स्किन पे जो कैपिलरीज होती है ब्लड की, वहाँ पे छोड़ देता है. जिससे क्या होता है कि हीट जो हो है ना, हीट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके बाहर निकल जाती है अपनी बॉडी से, ताकि क्या होता है आपकी बॉडी कूल रहती है. सो दैट्स हाउ द ब्लड मेंटेन द होमियोस्टेसिस. When we say that blood is as unique as other cells of the body,
मेरा जैसे कि मेरा जो ब्लड है वो यूनिक है एज कम्पेयर टू कोई भी दूसरा कोई भी इंसान हो, भले वो मेरी सिबलिंग्स क्यों ना हो, एक्सेप्ट दी एक्सेप्ट दी मैटरनल ट्विंस। ओके, ब्लड हमेशा यूनिक होता है। ब्लड में इसलिए अपन जब बोलते हैं ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपन पहले ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ब्लड को लेकर भी, इसलिए ब्लड हर इंडिविजुअल का एक यूनिक है, इट इज नेवर सेम। नाउ हिमेटोलॉजी, हाउ, अपन जब बात करें द स्टडी ऑफ ब्लड and the blood forming tissues and the disorders associated with the blood, all these things are studied under the branch of science which is known as hematology. Okay, now the next topic is physical characteristic of blood. इसके अंदर अपन देखेंगे क्या होता है कि ब्लड कैसा दिखता है, ब्लड के मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो अपन जब देखते हैं तो ब्लड को अपन जब टच करते हैं ना, तो ब्लड स्लाइटली डेंसर होता है और मोर विस्कस, विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। जब भी आप ब्लड और वाटर को देखते हैं तो ब्लड थोड़ा गाढ़ा दिखता है आपको, सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर, इट इज मोर डेंसर एंड मोर विस्कस देन वाटर। नाउ अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, ब्लड का टेम्परेचर होता है 37 to 38 डिग्री सेल्सियस, यही आपका बॉडी टेम्परेचर है। समझ रहे हो कि ब्लड का जो टेम्परेचर है वही आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है, और दिस टेम्परेचर इज 1 डिग्री हायर देन द योर ओरल, यानी जो मुंह है आपका, मुंह का टेम्परेचर, एंड द रेक्टल टेम्परेचर। ओके, जो रेक्टम होता है, रेक्टम आपका एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ जीआई ट्रैक्ट, उस रेक्टम के टेम्परेचर से 1 डिग्री हाई होता है। द रीजन माइट बी दैट ओरल एंड रेक्टल एरिया आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, इसलिए उनमें जो है ना टेम्परेचर वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द होल बॉडी। नाउ अबाउट द पीएच ऑफ ब्लड, पीएच होता है 7.4 to 7.5 विच इज स्लाइटली अल्कलाइन, और ये है ना इनबिल्ट है, पीएच इतना ही रहता है और इतना ही रहना चाहिए ब्लड के लिए ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके बॉडी की। नाउ व्हाट ब्लड कंप्राइज अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ टोटल बॉडी मास। मेरी बॉडी का जितना भी मास है ना उसका 8% आपका ब्लड ऑक्यूपाई करता है। नाउ अबाउट द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की बात करता हूँ मैं, तो मेल में यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है कम्पेयर टू फीमेल, एवरेज होता है 5 लीटर, बट मेल्स में अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इट इज 5 to 6 लीटर्स, and female से मिलता है आपको 4 to 5 liters. The reason behind this we will discuss later on when we will study about RBC and all. About the blood volume, the volume of the blood can be altered. So for the regulation, we have different types of hormone regulation which are regulating the volume of the blood so that the blood की जो volume है वो हमेशा constant रहे ताकि कोई variations ना आ सके. The hormones which are needed, which are usually play a role in blood volume regulations are aldosterone, which are secreted by the adrenal cortex, antidiuretic hormone secreted by pituitary gland, and atrial natriuretic factor, which is secreted by the atria of the heart. Now, अपन जब बात करते हैं हार्ट की, तो अपन को पता है कि अपना हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। उसी हर बीट के साथ में क्या होता है कि दोनों वेंट्रिकल्स 70 ml ऑफ ब्लड निकालते हैं। राइट वेंट्रिकल 70 ml निकालेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी 70 ml निकालेगा, ठीक है। तो वो क्या, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो जब मैं इस टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को यानी 72 टाइम्स को जब मल्टीप्लाई करता हूँ 70 ml से, तो आई गॉट अ रिजल्ट ऑफ 5040 ml, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। इट मीन्स 1 मिनट के अंदर आपका ब्लड हार्ट को, मतलब आपका जो हार्ट है वो ब्लड, आपके पूरे ब्लड को पंप करता है। 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी का सारा ब्लड पंप हो जाता है थ्रू हार्ट। ओके, नाउ अबाउट द कलर ऑफ ब्लड, व्हेन वी से द कलर ऑफ ब्लड, देयर इज अ लाइक एनिमल किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी, ठीक है, कलर ऑफ ब्लड के लेकर, विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट इन द ब्लड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन, अपना ब्लड होता है लाल। ओके, सो अपन डिस्कस करेंगे देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड with oxygenated and deoxygenated. Okay, so there will be difference in the color of both of them. In case of humans and other vertebrates and majority of the vertebrates, the oxygenated blood is bright red in color. Okay, and the deoxygenated blood is deep red or dark red in color. It is due to the presence of hemoglobin, which is a quaternary structure having the iron group in center. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में।
some मोलस्क विच वी कैन से मोलस्क जो क्रस्टेशियंस होते हैं जैसे स्पाइडर्स हो गए, कुछ ऑक्टोपस हो गए, इन सब का क्या होता है, इन सब का ब्लड होता है ब्लू कलर का। व्हेन वी से ब्लू कलर, तो ब्लू कलर से अपन का आता है एक ही कि कॉपर कंपाउंड, इट मस्ट बी अ कॉपर कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन में क्या होता है कि देयर इज कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपीयर्स ब्लू इन कलर एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपीयर्स कलरलेस। इन अनदर केस क्लोरोस क्लोरोरिन जो कि ग्रीन कलर का होता है, एक तरह का पिगमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये कहाँ का होता है, ये कुछ सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल लीच, लीच मतलब जो जोक हो गई आपकी, एंड सब मराइन वर्म्स के अंदर होता है। इसके अंदर ये होता है कि ये सिमिलर टू इट इज सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन, बट होता ये है कि इट इज when it deoxygenated it is appears light green color, but when oxygenated it appears green in color. Okay, but जब ज़्यादा ही ऑक्सीजन हो जाती है इसकी इस ब्लड के अंदर, तो it appears light red in color. Similarly, hemerythrin is present in some of the marine worms, for example peanut worm, penis worm, brachiopods. इसके अंदर भी यही होता है कि जो deoxygenated blood है वो colorless होता है and the oxygenated blood appears violet pink in color. सो अपन जब बोलते हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर थे ब्लड के, बट अपन जब बोलते हैं ना कि अपनी वेन्स ब्लू कलर की होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना जो बॉडी जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू कलर का है। द रीजन बिहाइंड दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द ब्लड योर ब्लड इज ऑलवेज ऑफ रेड कलर, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डल रेड और द डार्क रेड इन कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो अपन जब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की, तो कंपोनेंट्स हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं। प्लाज्मा विच इज द वाटरी ईसीएम, ईसीएम मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब लिक्विड होता है, तो मतलब प्लाज्मा से लिक्विड, तो उसको अपन वाटरी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होते हैं, सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट। ओके, तो अपन जब अपने अगर आपके अपने में ब्लड लिया, अपने टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में अपने ब्लड लिया और अपन ने इसको सेंट्रीफ्यूज किया बहुत ही हाई रिवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, तो हुआ ये कि अपने कंपोनेंट्स जो होंगे ना ब्लड के, वो सेपरेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। सबसे नीचे वाला होगा मोर डेंसर और सबसे ऊपर वाला होगा लेस डेंसर। ओके, तो जब अपने ब्लड को किया तो वी गॉट 3 मार्क्स फ्रॉम showing component, the most upper one or the most, so and the less denser, that is the plasma, which comprises of the 50% of the volume, followed by a buffy coat, which is mainly composed of the white blood cells and platelets, followed by RBC, which are the most dense, consisting of the 45% of total. होता ये है कि बेसिकली प्लाज्मा इज 55% by weight, ओके सॉरी बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 45% में। बट होता ये है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर जो 45% है, उन 45% के जो मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स बने अपने, उसमें से 99% 99 ज़्यादा जो होते हैं ना वो आरबीसी होते हैं। इसलिए यहाँ पे अपने आरबीसी को 45% शो कर रखा है। बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स प्लस रेड ब्लड सेल्स आर 45%, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। बाकी बेसिकली ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, दे आर इन मिलियंस एज कम्पेयर टू वाइट ब्लड सेल्स आर इन थाउजेंड्स एंड प्लेटलेट्स आर इन लैक्स। इसलिए अपने रेड ब्लड सेल को 45% शो कर दिया है। सो इट मीन्स द आरबीसी आर द मोस्ट डेंसर, followed by the WBC and followed by the plasma. So when we say about the complete components of blood, we can see by means of body weight we have whole blood comprising of 8% of total body weight, and this 8% of total body weight, it is our blood, composed of two components: blood plasma and formed elements. Blood plasma consists of 55% by volume of blood and formed elements consist of 45% by volume of blood. ब्लड प्लाज्मा के अंदर फिर से और कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली ब्लड प्लाज्मा इज मेजरली वाटर, दैट इज 91.5% बाय मींस ऑफ वेट ऑफ द प्लाज्मा। मतलब जो टोटल प्लाज्मा का वेट है उसका 91.5% जो है वो वाटर है। 7% जो बचा वो आपका प्रोटीन्स हो गया, एंड 1.5% जो बचा है वो आपके अदर सॉल्वेंट्स हो गए, ठीक है। तो अपन जब बात करते हैं तो वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है, तो वाटर की बात अपन मतलब फंक्शंस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। व्हेन लेट्स कम टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होता है, वी हैव 3 मेजर प्रोटीन्स: एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन्स। ओके,
These three proteins, albumin, globulin, fibrinogen, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों these three are known as plasma protein. The proteins which are present only in the blood plasma are known as plasma protein. वो proteins जो सिर्फ प्लाज्मा में ही है, बाकी बॉडी में और कहीं पर भी नहीं है. They are not present in any other part of the body except plasma. Those are known as plasma protein. अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होंगे, बट वही बट वो प्रोटीन जो सिर्फ प्लाज्मा में होते हैं ना, पूरी बॉडी के सिर्फ प्लाज्मा में ही मिलेंगे आपको. दीज आर नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन्स. इन प्रोटीन्स के बाद आता है अपने पास अदर सॉल्यूट्स, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्रेसेस, रेगुलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो कैन कम ऑन टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. वी हैव हाईएस्ट अमाउंट में होता है जो अपने पास होता है आरबीसी. आरबीसी जो होते हैं दे आर इन मिलियंस, 4.8 to 5.4 millions, followed by the platelets. Platelets are like 1.5 to 4 lakhs के बीच में होते हैं, and platelets are not cells. Platelets are the fragments of cells. Then we have WBC, that are soldiers of our body. They are mostly in 1000 and 5000 to 10,000. तो white blood cells के अंदर भी there are variety of the cells. First is the majorly neutrophils, the largest in amount, followed by lymphocytes, देन मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. इनके ये नाम क्यों आए हैं, न्यूट्रो, लिम्फो, मोनो, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा. सो ब्लड प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड. स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है कि पेल येलो, मतलब पूरा येलो नहीं, इट जस्ट वाइट कलर मिक्सड विद येलो कलर. ओके, डर्टी वाइट ऐसा कुछ. सो इट इज अ वाटरी लिक्विड, इट्स अ मटेरियल. नाउ व्हेन इट्स अबाउट द मोस्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, दैट इज वाटर. तो वाटर के फंक्शंस क्या होते हैं? इट एक्ट एज सॉल्वेंट, जिसमें कि सब मिक्स होते हैं, एंड सस्पेंडिंग मीडियम, मतलब जिसमें प्रोटीन्स होंगे, इसमें सेल्स होंगे, ये सब इसमें सस्पेंड होंगे. ओके. सेकेंड थिंग, इट एब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीजेस हीट एंड हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन. जो मैं बताया था आपको कि है ना, टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन हो रखा है, हीट निकल रही है, तो वहाँ से वो हीट को लेकर जाता है, मतलब सरफेस पे लेके आता है, ताकि कि सरफेस से वो हीट बाहर निकल जाए और ब्लड ठंडा रहे. ठीक है, मतलब ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहे. इट इज 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ कम टू द प्रोटीन्स. अपन जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का मेन फंक्शन अपन जो पूछते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? तो प्लाज्मा प्रोटीन का मेन फंक्शन है टू एक्सर्ट कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, सीओपी, और ब्लड सीओपी, दैट इज बीसीओपी, और प्लाज्मा सीओपी, दैट इज पीसीओपी, एंड और इसको बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक एंड ऑन्कोटिक प्रेशर. कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज ऑन्कोटिक प्रेशर. इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि मान लो जब मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उस प्रेशर से क्या होता है कि मेरे जो सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. ब्लड बहुत तेज फ्लो कर रहा है तो मेरा कुछ पानी, मतलब वाटर बाहर निकल गया, कुछ सब्सटेंस बाहर निकल गया, ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी. ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम कम ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, ब्लड में बहुत हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसंट्रेशन. ठीक है, तो क्या होता है कि बाहर तो प्रोटीन कम है, यानी कि जो सोल्यूट है, प्रोटीन का सोल्यूट यहाँ पे, ठीक है, जो सोल्यूट कम है, तो सोल्यूट कम है और अंदर क्या सोल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर विल ट्रेवल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन वाटर की बाहर है, और वाटर अंदर कम है. ठीक है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, and this pressure exerted by these proteins are known as oncotic pressure, which is causing the flow of the water from interstitial fluid to blood. इसी तरह से मतलब क्या हो रहा है कि इन टोटल यहाँ से ब्लड के फ्लो से मेरा सब वाटर बाहर निकल रहा है, बट प्रोटीन का जो प्रेशर लग रहा है, जो प्रोटीन एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो वाटर है वापस से मेरे कैपिलरीज में आ रहा है, जिससे कि मेरा ब्लड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कैपिलरी माइक्रो सर्कुलेशन, और इसको अपन स्टारलस फ्लो भी बोलते हैं, जो कि अपने क्लोज पे नहीं है. ठीक है, so again back to the same slide. In addition to the oncotic pressure and maintaining the water balance in blood capillary and blood volume, it helps in transportation and protection. Okay, how it helps in transportation and protection, we will discuss about the different we'll discuss in the different headings of these proteins, starting with the albumin. Albumin is the most abundant, most numerous protein present in the plasma. It has a major contribution to oncotic pressure.
और अगर इसकी अगर क्वांटिटी कम हो गई, अगर ब्लड में अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो क्या होगा कि जो भी अब से समझाया था ना मैंने आपको कि ब्लड फ्लो से सब वाटर बाहर निकल रहा है, तो वाटर बाहर निकलता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर तो काम कर रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर तो काम हो ही नहीं रहा है। तो इसके से क्या होता है कि आपकी जो कैविटी होती है ना, आप कैविटी में क्या होता है, मतलब जो बॉडी कैविटी है जिसमें सब ऑर्गन्स रह रखे हैं, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में बोलते हैं एसाइड्स। ओके, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एसाइड्स। इस तरीके से हम बोलेंगे, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे एसाइड्स। ओके, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन? एक तो ऑन्कोटिक प्रेशर हो ही गया। नेक्स्ट, इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। थायराइड हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की अगर हम बात करते हैं, अपन ग्लोबुलिन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि दीज आर प्रोड्यूस बाय फर्स्ट बाय लिवर एंड बाय प्लाज्मा सेल्स। तो ग्लोबुलिन की अपन अगर बात करते हैं तो ग्लोबुलिन के तीन तरीके होते हैं, वन इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, अल्फा बीटा जो होते हैं वो अपना लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो गामा जो होता है, गामा इज प्रोड्यूस बाय योर प्लाज्मा सेल। ओके, अल्फा बीटा का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड्स, फैट्स, सोल्युबल विटामिन्स, एंड गामा ग्लोबुलिन्स क्या होती है, अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अपनी पढ़ा हुआ कि जो आईजी एंटीबॉडीज होती है, जो एंटीबॉडीज अपन जो अपनी बॉडी बनाती है, these are produced by plasma cells and they play a very important role in the immune strategy and are the very important part of the immune system. Okay, now the next one is now the next one is fibrinogen. Fibrinogen की बात करेंगे अपन, तो it is produced by liver and it has a very important role in blood clotting. होता ये है कि this fibrinogen gets converted to fibrin. Fibrin से convert होता है by means of thrombin, and conversion of this fibrin result in the blood clotting. So that's the main function of the fibrinogen protein. So I think all the things are clear for you till this point. Next, we have what is the function of other solutes. Okay, when we say the what is the function of other solutes, तो अपन जब बात करेंगे इसकी, तो we have first we have to talk about electrolytes. अपन जब इसकी बात करते हो इलेक्ट्रोलाइट्स में अपने पास आता है कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस में बोलेंगे अपन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एनायंस बोले तो क्लोराइड, H2O4 सल्फेट, बाइकार्बोनेट आयन। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर देखो आयन है तो दे विल एक्ट एज सल्यूट, तो क्या करेंगे, दे विल मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड some ions, for example sodium, potassium, chlorine, they helps in channel protein. They helps in transportation of substances across the membrane. For example, sodium has a very important role in transportation of glucose. Chlorine has a very important role in transportation of bicarbonate, etc. Okay. In addition, they also helps in maintenance of pH because bicarbonate system in the blood helps in maintenance of blood pH. नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट जितना भी अपनी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी, एमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ट्राइग्लिसराइड, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब अपनी ब्लड में आएगा एंड दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेटेड साइट और सेल्स, जिनको सेल की जरूरत होगी वहाँ जाएगा, ठीक है। वी हैव गैसेज ऑल्सो इन द ब्लड। गैसेज में क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये सब क्या होती है, ये सब जाएगी सेल्स तक और सेल्स से वापस आएगी। CO2 विल बी टेकन फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, oxygen will be taken from the lungs to the cell. रेगुलर सब्सटेंसेज में आता है अपना हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। हॉर्मोन्स का फंक्शन होता है कि बहुत मतलब टारगेट ऑर्गन में बहुत अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एंजाइम्स तो पता ही आपको, दे आर बायोकैटालिस्ट, जो कि ना मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स से यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, बिलीरुबिन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड और दे विल गो टू देयर द टारगेट और ऑर्गन दैट इज किडनी, फ्रॉम वेयर दे विल गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो वी विल एंड आवर लेक्चर हियर ओनली। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा, अपन ने पूरे ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड कैसा होता है, ब्लड का मोशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब इसके आगे जो टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इन दोनों की वीडियो, मतलब दोनों लेक्चर की वीडियो मैं एक साथ डालूंगा ताकि आप दोनों साइमल्टेनियसली देख सकें। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी लेक्चर 2 नाम से, दैट इज लेक्चर 2 कंटेनिंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट. कोई भी क्वेरी हो, drop it in comment box. I will try to reply it as soon as possible. And if you like it, do subscribe, do share. Thank you so much. Have a great day.